Namaste. Welcome to this global online Ramlila festival. It's the first of its kind in the world. It's going to bring together countries from around the world to perform Ramlila, this Ram Katha, as told in two styles. You will see the dramatic theatrical style or the Natya Dharmi style, and then you'll see the Lokadharmi style, Maidani, in the open air. The last one is a kind of very old style of performing that's still present in countries like Trinidad, Suriname and Fiji, and in many parts of North India. So this is the first of its kind in the world. And because of the COVID-19, many places will be unable to perform the Leelas they normally do. So Ayodhya Research Institute has decided to put together videos from the different parts of the world where they perform the Ramlila and to showcase for you the different styles. The Indira Gandhi National Center for the Arts will also be joining with the Ayodhya Research Institute in sharing their archives of different performances that they have recorded across India, Southeast Asia, and even Russia. So I invite you to enjoy this festival for nearly 30 days. रामायण सतकोट या पारा। रामायण कितने रूपों में कहाँ कैसे विस्तारित है, अयोध्या शोध संस्थान से शोध करते हुए जो निष्कर्ष मिल रहे हैं वो अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। कलिंग युद्ध के बाद पहली बार भारतीय संस्कृति का माइग्रेशन दूसरे देशों में हुआ। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो जो पूर्वी तट है हमारा, उड़ीसा, तमिल और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वहाँ से जो कला हमारी कलिंग युद्ध के बाद 200-300 ईस्वी पूर्व से जो विस्तार हुआ, तो साउथ ईस्ट एशिया में वो सारे कला रूप हमें मिलते हैं। भारत के हर राज्य में, हर भाषा में रामलीला का आयोजन होता है और दुनिया के अंदर भी लगभग हर भाषा में, हर देश के अंदर रामलीला का मंचन किसी न किसी रूप में होता है। राम सब जगह है, राम सबके। इसलिए राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र है। साथियों, दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं। वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण, राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में तालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत शेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा। Unraveling of the mystery of the Ramayana.
දණ්ඩක වන ගෙබ මල් යාන රම්‍ය සීත සුදු සඳ පාන සුන්දර කල කොමරුනි රාම නිම්හිම්නේ සුබසීන දණ්ඩක වන ගෙබ මල් යාන රම්‍ය සීත සුදු සඳ පාන
शिवाय ॐ नमः शिवाय जटाटवीगलज्ज्वलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताभुजङ्गतुङ्गमालिका मण्डमण्डमण्डमन्निनादमड्वमर्वयं चकारताण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवा चकारताण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवा चकारताण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवा नमः शिवाय 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 दादा दे तकिट तकिट दादा दे 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 दादा 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 दे दादा दादा
පෙම්බර රාවන තුරුලේ රසගුල් මේ මින්දාද දෝමේ යහනේ මන්දෝදරේ පෙම්බර රාවන තුරුලේ රසගුල් මේ කම්පිතනු පුර රැවුමිනි මෙහුලේ කම්පිතනු පුර රැවුමිනි මෙහුලේ හංස තුඩින් තරේ රාවන දෙවුරේ හංස තුඩින් තරේ රාවන දෙවුරේ මින්දාද දුමේ යහනේ මන්දෝදරියේ පෙම්බර රාවන තුරුලේ රසගුල් සරලවනේ මුවරද නොසිඳේ ඇසිපිය පියවෙදු මන්දෝදරියේ සිහරද රාවනගේ පුරවඩලේ මින්දාද දුමේ යහනේ මන්දෝදරියේ පෙම්බර රාවන තුරුලේ රසගුල් මේ මින්දාද දුමේ යහනේ මන්දෝදරියේ පෙම්බර රාවන තුරුලේ රසගුල් මේ කම්පිතනු රැවු මිනි මෙවුලේ කම්පිතනු පුර රැවු මිනි මෙවුලේ හංස තුඩින් තරේ රාවන දෙවුරේ හංස තුඩින් තරේ රාවන දෙවුරේ
සිරෙන් හොරඟනා පිය නිරෙඳුනේ රාම ඔබ මුවින් නැගී ගිනි පුපුරුමා දවනවා තාම සඳ වතුර යටමා කුරිරු ගින්නෙන් දවන අසෝකාවන ලපල්ලක් සේ මාවියෙන් සැලින වෙතට රාවණ පැව අනුරාධ පතිවතරකි ඔහුට හැපිදු පිපී ගිය දැස මා කොහේ කොතැනින් ගෙනෙන්නද එවන් මන්දහාස එවන් මන්දහාස
හිතට රාවන පැව අනුරාග අතීවතරකි ඔහුට හැපිදු පිපිගිය දැස මා කොහි කොතැනින් ගෙනෙන්නද එවන් මන්දහාස එවන් මන්දහාස Concept and dance choreographed by Chandana Wickramasinghe. Music Hello, composed hello. by Peshala Manoj. Hello. Performed by Chandana Wickramasinghe and the Dancers Guild of Sri Lanka. चारों तरफ दिखते लहराते खेत, ऊर्जावान मुस्कुराते चेहरे और परंपराओं के प्रति समर्पण भावना लिए हुए लोग। पंजाब के जालंधर जिले में बसे हुए कस्बे महतपुर में रामलीला की एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। इस कृषि प्रधान क्षेत्र पर हमेशा से ही संत और फकीरों की विशेष कृपा दृष्टि रही है। महतपुर शहर का नाम जो पड़ा है वो बाबा रामलो जी, जो यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर है बाबा राम जी को, तकरीबन कोई 650-700 साल पहले महतपुर में पहुँचे और उन्होंने दरिया सतलुज के बिल्कुल किनारे पे अपना डेरा लगाया। और फिर उनके साथ उन जम्मू से जब वो आए तो उनके साथ मेहता परिवार जो उनके सेवक थे बाबा रामलो जी के, वो उनके साथ आए। तो मेहता परिवार जो था वो बाबा जी का सेवक था और उन्हीं के नाम से, मेहता के नाम से ही महतपुर का नाम पड़ा। मेहता से बदलकर महतपुर बना है। बहुत लंबे समय से इतिहास और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। सिखों के गुरु श्री अमरदास जी ने जब सिख प्रचार के लिए, धर्म प्रचार के लिए पूरे देश को 22 हिस्सों में बांटा था, जैसे हम लोग बोलते हैं 22 मंजियों में बांटा गया था, तो उसमें एक मंजी महतपुर भी था। तो ये उस समय से ये महतपुर धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और उससे पहले से जुड़ा हुआ है। लेकिन आई एम शेयरिंग विद यू स्मॉल इवेंट। तो उसके बाद वो परिवार, उस समय का संत सरदार परिवार आज भी उस सेवा को निभा रहा है और वो लोग भी आज इस रामलीला में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। पंजाब का संबंध रामायण और राम कथाओं से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1000 पेज की रामायण लिखी हुई है, जिसमें राम और रावण के युद्ध का वर्णन करते हुए अन्याय की जो है पराजय उन्होंने दिखाई है कि किस तरह से न्याय पराजय जीतता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और जीटी रोड को अगर हम देखें, अमृतसर से लेकर के जो पंजाब में निकलता है, उसके गाँव के दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ जो गाँव हैं, उनमें जब हम देखते हैं तो बहुत अधिक रामलीलाओं की परंपरा दिखाई पड़ती है। उसी में एक जालंधर के पास एक महतपुर गांव है, जिस महतपुर गांव का जब प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी जी के द्वारा के साथ हम लोग जब गए उनके प्रधान जी के यहाँ, तो जब उनकी परंपराएं वहाँ पर पता चली रामलीलाओं की, तो वहाँ पर जो पंजाब में वर्तमान में, देखिए स्वतंत्रता संग्राम के समय तो रामलीलाएं प्रारंभ हुई, क्योंकि 1922 में 21 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उससे लोग बहुत आक्रोशित थे। और जो कलाकार थे उन्होंने रामलीलाओं का माध्यम बनाते हुए एक आज़ादी का जुनून, आज़ादी का जोश, संघर्ष के लिए प्रेरणा, वो उन्होंने जागृत किया। वर्तमान समय में क्यों जीवित है? क्योंकि जब तक कोई कला वर्तमान हमारे समस्याओं का उत्तर नहीं देती है समाज के, तो वो जीवित नहीं रहती है। इस समय पंजाब में सुनियोजित साजिश की तहत से पाकिस्तान द्वारा जो ड्रग्स फैलाया जा रहा है, उसमें उन युवकों को उनसे बचाने के लिए, क्योंकि रामलीला में जो पाठ करते हैं, मैंने उनसे सर्वे किया, मैंने उनसे पूछा, तभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हम जब रामलीला में पाठ करते हैं तो हम शराब का सेवन नहीं करते। हम किसी भी दुकान में अगर ड्रग्स लेने जाते हैं
तो हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि अरे भाई आप तो लक्ष्मण बनते हैं, आप तो परशुराम बनते हैं। तो ये सुन करके हमें बड़ा वो लगता, अच्छा लगता है, और हमारे परिवार के लोग इसीलिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम इन बुराइयों से बच सकें। बैसाखी हो चाहे लोहड़ी या दिवाली, पंजाब में हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इन्हीं त्योहारों के बीच यहाँ कई वर्षों से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है, जो कि अपने साथ कई दुर्लभ और अनोखे तथ्य जोड़े हुए हैं। लोक कथा के अनुसार यहाँ की रामलीला के शुरू होने के पीछे एक रोचक कहानी है। संत रामानंद जी बहुत प्रसिद्ध संत हुए 15वीं और 14वीं सदी के समय में। उनके शिष्यों में शुमार थे संत रविदास जी, संत कबीर जी, गुरु नानक जी भी उनसे शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं संत रामानंद जी से। और उनकी 13वीं चेलों की आगे संगत में से एक आए हमारे स्वामी जी महाराज। वो 19वीं सदी के शुरू में 1820-25 के तकरीबन में वहाँ नकोदर जाते थे। वहाँ पर नकोदर जाकर उन्होंने जब एक दिन ऐसा आया जब वहाँ पर लक्ष्मण मूर्छा का दृश्य दिखाना था, लक्ष्मण मूर्छा की लीला दिखानी थी। तो तब स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे। तो आप जैसे जान सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो कई बार संतों का सम्मान नहीं करती। वैसे संत जो होते हैं वो मान सम्मान से ऊपर उठे होते हैं, लेकिन संत के बारे में कभी निंदा या संत को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो एक साधु लोग हैं, परमात्मा रूप है, वो उनके मन को कष्ट नहीं देना चाहिए। जब वो गए नकोदर ये दृश्य देखने, तो अब वो बड़े आतुर थे कि प्रभु का स्वरूप जो लड़के बने हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। और साधुओं ने जो साधुओं का वेश पहना था, वो आगे जाने के लिए जब आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाने लगे, वहाँ उनको जैसे कि वहाँ के जो कार्यकर्ता थे आयोजन करने वाले, उनके द्वारा उनका थोड़ा अपमान सा हुआ, जैसे कि उनका जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और उनको उसी श्रेणी में रखा जैसे कि आम लोग देखने आए थे। उनके साथ जो अनुयायी गए थे उन्होंने कहा कि ये महाराज जी हैं, संत हैं जो मैतपुर पिंड से आए हुए हैं, तो आप इनके लिए थोड़ा विशेष स्थान दीजिए अंदर की तरफ। तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उनका तिरस्कार किया। ये बात उनके कष्ट हो गई, उनके हृदय को बुलंदर गई, उनके हृदय को कष्ट हुआ। और एक बात तो उन्होंने ये भी कह दी, वो स्वामी जी ने कहा कि हम तो बहुत दूर से आए हैं इसको देखने, आप हमारा तिरस्कार क्यों कर रहे हैं, भला इसके बजाय आपको हमारा स्वागत करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम स्वागत, अहंकार में कह दिए कि हम स्वागत करने वाले नहीं हैं, अगर आपको ज़्यादा पीड़ा हो रही है तो आप अपने नगर में शुरू कर दें। तो इस बात का स्वामी जी ने एक वाक्य अपने मुंह से निकाला कि अपने शिष्यों को कहा कि चलो शिष्यों अब हम चलते हैं, आज की लक्ष्मण मूर्छा का वृतांत ये नकोदर वाले क्या, ये आसपास के सभी नगरों वाले हमारे यहाँ देखने आएंगे। ऐसा वाणी भी कहती है कि साधु बोले सहज सुभाए, साध का कहा वृथा ना जाए। जो साधु लोग होते हैं बहुत कम बोलते हैं, उनकी दुनिया के प्रति ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है, लेकिन वो शब्द बहुत कम बोलते हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं देयर वर्ड्स हैज़ ए वर्थ, उनके जो शब्द होते हैं उनकी कीमत होती है, और वो उसका कहा खुदा भी नहीं टाल सकता। तो जब स्वामी जी वापस आए तो उन्होंने दशहरा ग्राउंड की ज़मीन जो तैयार करवाई, उसमें अनुष्ठान वगैरह किया, और ब्रह्मास्त्र के रूप में एक बर्शी तैयार की, और जो हमारे जो प्रोसीजर है लक्ष्मण मूर्छा का वहाँ से प्रारंभ किया। शरद नवरात्रियों में पहले दिन पूजा होती है श्री गणेश करके, श्री गणेश जी का पूजन करके, शिव दरबार का पूजन करके, राम दरबार का पूजन करके फिर रामलीला शुरू करते हैं। और रोज़ाना शाम के वक्त पूरे मैतपुर की परिक्रमा करके फिर दशहरा ग्राउंड पे जाते हैं, और वहाँ से लीला करके हर दिन की शाम को आते हैं, और उसकी शाम को आते ही फिर आरती पूजा होती है। भगवान की रामलीला है तो एक तरह से उत्सव का त्यौहार है, ठीक है जी। श्रद्धा भाव से भी जुड़ना है और हर्षोल्लास से। ये समय ही ऐसा आता है कि एक तो वर्षा ऋतु चली जाती है, शरद ऋतु आरंभ हो जाती है, अपने अपने स्तर पे जुड़ते हैं। आप देखना दशहरा जिस दिन लगेगा, पिंडों से और शहरों से यानी इतना रश होगा, इतनी भीड़ होगी कि खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती है। रामलीला के आयोजन के लिए यहाँ रामलीला कमेटी का गठन किया गया है, जो कि जन जन की सहभागिता से यहाँ रामलीला का आयोजन करवाती है।
रामलीला जो है ये बहुत बड़ा पर्व है। 10 दिन का तो 11 दिन का ये रोजाना का काम होता है। 1 महीना पहले ही हम लग जाते हैं। रावण के लिए बांस लाना, तैयारी करवाना, बर्दियों का इकट्ठा करना, बर्दियों को साफ़ सफाई करना, कमरों की सफाई करना, ग्राउंड की सफाई करना, जैसे बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, कुछ छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। फिर उसके लिए चंदा इकट्ठा करना घर घर जाकर, उसके लिए चंदा इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन दानी सज्जन ऐसे हैं, हमारे सहयोगी हैं जो साथी, और मैं धन्यवाद करता हूं अपने शहर निवासियों का कि वो हमें बड़ा सहयोग देते हैं और खुल के दान देते हैं, और हमारा जो टारगेट होता है वो पूरा हो जाता है हर साल। तो उसी हिसाब से वे बच्चों को तैयार करना, देखिए सनातन धर्म सभा में हम तैयार करते हैं अपने बच्चों को, जो जितने भी कलाकार हैं वो सनातन धर्म सभा से तैयार होते हैं। उसके बाद शहर में गेड़ा लगाते हैं, वो पूरा चक्कर लगाते हैं। फिर हम दशहरा ग्राउंड में आते हैं, दशहरा ग्राउंड में कराते हैं। वो शाम को हमारा जो होता है 3 बजे से लेकर 7 बजे तक वो चलता है प्रोग्राम। तो कुछ हम जैसे है कि रावण परिवार जो होता है वो एक जगह पे अपना मेकअप तैयार करते हैं, क्योंकि अलग अलग हम करते हैं। इनकी स्टेजें भी अलग होती है, वहाँ पे रामचंद्र जी अलग स्टेज बनेगी, ऐसे ही है। इनको तैयार करने भी हम अलग अलग ही रखते हैं, क्योंकि जे उस वक्त एक तरह के दुश्मन होते हैं, रावण परिवार और राम परिवार, इसलिए इनको हम दूर दूर रखते हैं। पहले तो चुनते हैं जो उसका पात्र सही तरह से उसको जानता हो, अनुभव किया हो, जिसने देखा हो कई बार से, सालों से, और जो खाने पीने में भी यानी शुद्धता रखे, मन से शरीर से। उतने दिन शुद्धता रखनी पड़ती है जब तक उसको बनना होता है 10-12 दिन तक। तो ये हमें कई सारे, अब आज भी हम अगर कोई किसी को बनाते हैं तो पहले उसके मेंटली एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, उसका रहन सहन देखा जाता है, उसका देखा जाता है कि कहीं ये बुरी संगत का आदी नहीं है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली देखी जाती है, उसकी राम प्रति श्रद्धा देखी जाती है। उसके बाद उसका फिज़िकल टेस्ट लेते हैं कि मतलब कोई उसके बाद प्रॉब्लम ना इसको आए या किस तरह भी, यह सभी मापदंड है। महतपुर की मुख्य आबादी हिंदू धर्म और सिख धर्म के लोगों की है। ये कस्बा इन दोनों धर्मों की आपसी एकता और एक दूसरे के प्रति सदाचार की एक अनोखी मिसाल पेश करता है। यहाँ की रामलीला में हर धर्म और जाति के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सब एक रल मिल के मेला करवाते हैं। आप देखो कि आप जब दशहरे में हमारे रामलीला में इसमें होगा, इसमें ज़्यादा सरदार भी हिस्सा लेते हैं। देखो आपने देखा होगा हमारे जो रावण तैयार करते हैं सरदार रछपाल सिंह सोखी साहब, वो सरदार हैं, कट्टर हैं, लेकिन वो रावण के पुतले फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करके देते हैं हमें, कोई पैसा नहीं लेते हैं। उनको शौक़ है, वो 25-30 साल से फ्री बना रहे हैं। उन्होंने ये बोला हुआ जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं काम कर सकता हूँ मैं करूँगा। हम बचपन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम अपने माँ बाप के साथ जाते थे देखने, उसके साथ ही हमको भी शौक़ हुआ। ये कुछ हम बनते भी रहे हैं, कभी राम बन गए, कभी लक्ष्मण बन गए, ऐसा बनते बनते तो मतलब इससे जुड़े हैं। बाद में हमारे चाचा जी ये बनाते थे ये स्टैचू रावण कुंभकर्ण जी, तो उनके बाद वो थोड़े बीमार हो गए, तो उनके बाद मैं ये बनाना शुरू किया, तो आजकल मैं बना रहा हूँ। परिवार या कह लीजिए चाहे वो कोई भी किसी भी कास्ट से है, किसी भी बिरादरी से है, चाहे वो सरदार हैं, जहाँ कह लीजिए आधर्मी बिरादरी है, वाल्मीकि बिरादरी है, वर्मा फैमिलीज़ हैं, चोपड़ा फैमिलीज़ हैं, जहाँ फिर कोई भी है, वो सब मिलके करते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसको पार्टिसिपेट नहीं देता। यहाँ से पूरे इलाके से अगराई इकट्ठी की जाती है, पैसा इकट्ठा होता है, बाहर से आता है, NRI भी सपोर्ट करते हैं। तो हर एक चीज़ जो है वो पैसे के माध्यम से होती है, पैसा तो हर चीज़ पे खर्च होता है, तो वो एक साथ देते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैंने रामलीला के लिए नहीं देना, मैंने इसके लिए नहीं देना, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना किसी के मुंह से हमने आज तक सुना है। अगर आप महतपुर रामलीला के कराने वाले संरक्षक को देखें तो प्रधान जी जो हैं वो कई पीढ़ियों से इस रामलीलाओं को कर रहे हैं। इसमें उनको कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है, उनकी केवल एक सामाजिक भूमिका है। उस सामाजिक भूमिका में जो सभी वर्गों का योगदान होता है, यूनेस्को भी इसी के कारण बहुत चमत्कृत है। और 2005 में जब उसने विश्व विरासत घोषित किया तो उस पर उसने लिखा कि विश्व में 500 साल से लगातार एक कोई जीवंत विधा हो, जीवंत परंपरा हो
और कोई रामलीला के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये यूनेस्को भी इस बारे में चमत्कृत है। यही हमारी जड़ है, यही हमारी परंपरा है और यही हमारा सांस्कृतिक वैभव है जो हमको जोड़ता है। मैं बचपन से ही दशहरे और जो रामलीला है उसमें अपने पिताजी के साथ जाता था, क्योंकि पिताजी मेरे जो थे वो दशहरा कमेटी के प्रधान थे। उन्होंने 25 साल इस रामलीला कमेटी की प्रधानगी करी है। तो बचपन से उनके साथ जब जाते थे तो देखते देखते हमें भी शौक़ पैदा हो गया। जब छोटे थे तो हनुमान की सेना बन जाते थे, कभी कुछ ऐसे ही दशहरे में हम काम करते थे। लेकिन जब बड़े होते गए जो तब हमें कुछ छोटे बड़े रोल मिलने शुरू हो गए। जैसे कि दशरथ की मौत पे हमने जो करते थे पिछयापा वो करते रहे। फिर हर धीरे धीरे मेरे को रावण का छोटा रोल मिला, सीता हरण का करना मिला। डॉक्टर का रोल जो होता है, जब लक्ष्मण मूर्छा आती है तो फिर डॉक्टर का रोल भी मेरे को करने को मिला। धीरे धीरे जब 1990 में मेरे को रावण का रोल मिल गया और मैंने 90 से रावण का रोल आज तक कर रहा हूँ। 30 साल हो गए तकरीबन मेरे को रावण का रोल करते हुए। इतना शौक़ हो गया कि मैं भी दशहरा कमेटी का मेरे को प्रधान बना दिया गया। मैंने फिर दशहरा कमेटी की प्रधानगी करी। उसके बाद अजय जी को जब प्रधान बनाया, मेरे को चेयरमैन बना दिया गया। अब मैं दशहरा कमेटी का चेयरमैन हूँ और दशहरा हम रल मिल के सारे यहाँ का महत्व का मनाते हैं। हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद रामलीला के आयोजन की तैयारियां पूर्ण होती हैं। रामलीला का आयोजन शरद नवरात्रि के दौरान होता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपाड़ा तिथि को शुरू होती है। सबसे पहले जितने भी पात्र बनने हैं उन सब ने मिलके मंदिर में पूजा करना है, भगवान शिव से आशीर्वाद लेना है और उसके बाद इस रामलीला का जो है तैयारी शुरू हो जाएगी। सभी पात्रों का मेकअप हमारे जो मेकअप मैन हैं वो श्री सनातन धर्म सभा महतपुर में करेंगे। बच्चों की तैयारी होगी, मेकअप होगा, उसके बाद उनको जो कपड़े हैं पहनाए जाते हैं पूरे स्वरूपों के, रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के, उनकी वर्दियां पहना के तैयार करेंगे। फिर ये सब तैयार होकर अपने अपने वाहनों पे जा खड़े होकर सारे शहर का चक्कर लगाने के लिए उसके आगे ढोल होंगे, बाजे वाले होंगे, वो सारे शहर का राउंड लगाते हैं। नगर भ्रमण के बाद रामलीला मैदान में ताड़का वध की लीला का आयोजन होता है। दुनिया जो बच्चे हैं, जो माताएं हैं, वो सब इस दृश्य को देखने के लिए वहाँ पे शहरवासी आते हैं। तो ये पूरा होने के बाद हम एक स्टैचू बनाते हैं ताड़का का, उसको जलाया जाएगा। जैसे रावण के दहन किए जाते हैं पुतले, ऐसे ही ताड़का का भी पुतला दहन किया जाता है, जिसमें पटाखे वगैरह रख के पूरे धूमधड़के के साथ उसके शरीर को है अग्नि दी जाएगी। ताड़का वध की लीला के अगले दिन यहाँ पर सीता स्वयंवर की लीला का आयोजन होता है। गुरु विश्वामित्र के साथ प्रभु श्री राम जनकपुरी पहुंचते हैं और सभी राजाओं के शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में विफल होने के बाद वो स्वयं शिव धनुष भंग कर देते हैं। लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच वो संवाद आज खेला जाएगा और उसके बाद राम जी ने उनको जो सिख परशुराम जी के साथ संवाद किए और उन्हें शांत किया, वो सब का आज हम
स्टेज पर मंचन करेंगे। और इसी तरह आज का दिन जो है हमारा सीता स्वयंवर का दिन है और इस खुशी में हम सीता स्वयंवर के लिए लड्डू बांटेंगे। सीता स्वयंवर के बाद राम बारात की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस दिन राम, लक्ष्मण और सीता के श्रृंगार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आज के दिन अयोध्या से राम की जो बारात है वो जनकपुरी के लिए चलेगी और बाजे गाजे के साथ घोड़ों पे राम लक्ष्मण की सवारी, चेहरे पे लगे हुए सेहरे, एक देखने वाला दृश्य। राम के चेहरे पे नूर, लक्ष्मण जी के साथ शादी होती है, सगाई होती, वो वही सनातन धर्म सभा से चलेंगे और शहर का जो चक्कर लगाते हुए फिर दशहरा ग्राउंड में उसी लीला मंच पर रामलीला होगी। महारानी कैकेयी द्वारा महाराज दशरथ से राम वनवास मांग लिए जाने के बाद प्रभु श्री राम वन को प्रस्थान कर जाते हैं। इस दिन रामलीला में श्री राम द्वारा सरयू पार करने की लीला का आयोजन होता है, जो कि रामलीला मैदान के पास स्थित सरोवर में प्रदर्शित की जाती है। सरयू पार की लीला के साथ ही इस दिन की लीलाओं का अंत हो जाता है और फिर इसके अगले दिन दशरथ मृत्यु की लीला प्रदर्शित होती है। ये पूरा हमारे पंजाब में जो जैसे पंजाबी स्टाइल में जब किसी घर में मर्ग होती है उसी स्टाइल से ही यहाँ पे ये लीला खेली जाती है। भरत जी का जो राम जी से मिलना, खड़ाए लेना, ये सारे दृश्य के बाद जब दशरथ जी की मौत होती है तो उसी तरह अर्थी बनाकर दशरथ जी की जो डेड बॉडी है उस अर्थी पे ले जाई जाती है। तो जो पंजाब में जैसे लेडीज़ विरलाप करती है वो सारा विरलाप करने का दृश्य आज होगा। वो जहाँ पे हमारे वो बहुत सी कॉमेडी टाइप भी हो जाता है बीच में, जो लेडीज़ होती है बहुत सी पंजाबी स्टाइल में, जो हमारे पंजाब में उसे बोलते हैं कीरने डालना। वो कीरने पार डालती है कि जैसे हा है राजा मोतिया वाला, ना बुड्ढा ना शेर राजा मोतिया वाला, ऐसे जो ऐसे करके बहुत से स्टाइल में, जो पंजाबी स्टाइल में ही पूरा जो दृश्य आपको देखने में मिलेगा। क्योंकि दक्षिण भारत और पंजाब के सारे रीति रिवाज जो है वो अलग अलग से हैं, इसलिए जो पंजाब के स्टाइल में ही जो रामलीला है, क्योंकि ये पंजाब का एक गाँव था, लेकिन अब अभी भी जहाँ पे जो रामलीला है पूरे ही पंजाबी स्टाइल में गांव की तरह ही खेली जाएगी। आज के दिन की आप देखेंगे कि वे पूरी अर्थी वैसे ही लेके जाएंगे, पीछे लोग होंगे, लेडीज़ जो है वो करेंगी स्यापा, पेट स्यापा जो करते हैं हमारे पंजाब उसे पेट स्यापा भी बोलते हैं, स्यापा करेगी। वो सब का आज दृश्य देखने को मिलेगा और उसके बाद आज फिर समाप्ति होगी। नया दिन, नया सवेरा और रामलीला का एक नया अध्याय। आज के दिन महतपुर रामलीला में सुर्पनखा की नाक काटने की लीला का आयोजन होता है, जिसमें लक्ष्मण द्वारा राक्षस राज रावण की बहन
सुर्पनखा की नाक काटी जाती है। बीतते दिनों के साथ रामलीला मैदान में भीड़ बढ़ने लगती है और इस भीड़ को रामलीला कमेटी द्वारा बड़े ही सलीके से नियंत्रित किया जाता है, जिससे हर कोई लीलाओं का पूर्ण आनंद ले सके। डिसिप्लिन एक, क्योंकि आप कोई भी इतना बड़ा इवेंट है और आप इतने सालों से प्ले कर रहे हो, तो सबसे जरूरी चीज़ है डिसिप्लिन। आपकी कमेटी का डिसिप्लिन और आपके जो वहाँ पे ऑडियंस आ रहे हैं उनको बैठाने का और उनकी मैनेजमेंट करने का डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन को लेकर जो हमारी महतपुर की दुशहरा कमेटी है वो बहुत सिंसियरली इस रोल को हर साल प्ले करती है। आई थिंक ऐसे कुछ एफर्ट्स हैं जो वो हर साल करते रहते हैं। सो महतपुर की रामलीला जो आगे इसी परंपरा से चलती रहे। अगले दिन की लीलाओं की शुरुआत होती है मारीच वध की लीला के साथ, जिसमें प्रभु राम मारीच का पीछा करते करते कुटिया से बहुत दूर निकल जाते हैं। लक्ष्मण के कुटिया से जाने के बाद दशानन रावण साधु भेष में आकर सीता माता को हर ले जाता है। सीता हरण की लीला के अगले दिन शरद नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महतपुर की रामलीला की सबसे प्रमुख लीला लक्ष्मण मूर्छा का आयोजन होता है। यहां की लक्ष्मण मूर्छा देश विदेश में अपने अनोखेपन के लिए विख्यात है। ये लीला एक अनसुलझी पहेली की तरह है, किसी के लिए भगवान का चमत्कार तो किसी के लिए अकल्पनीय दृश्य। मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ हूँ। मैं भी तकरीबन 5-6 बारी मूर्छा में अभिनय कर चुका हूँ, यहाँ रामचंद्र जी का किरदार कर चुका हूँ, मूर्छा ले चुका हूँ। तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, हम नहीं जानते हमें क्या होता है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमारी आंखें बंद हो गई और मंदिर में खुल गई। 3 साल मैंने अपने बेटे को लक्ष्मण की वर्दी, उसको बोला तू लक्ष्मण बन, राम बन, तेरे को 3 साल वर्दी पानी है, उसके बाद तेरी शादी कर देनी है। और उसने मूर्छा ली। मैंने उसको भी पूछा, बेटा अभी मूर्छा का क्या तुरंत है? और बोले पापा आपको नहीं अब तक मालूम हुआ तो मेरे को क्या होगा? क्योंकि लक्ष्मण जी और राम जी को वर्दी भी पहन लेते हैं, लेकिन वो राम जी की कृपा है, कृपा से ही लक्ष्मण मूर्छा चलती है। आज तक किसी को कोई नहीं भेद हुआ ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम पूजा करते हैं शिवलिंग के आगे। हम बर्शी जो है ब्रह्मास्त्र हमें शिवलिंग के ऊपर रखते हैं और उसकी भी पूजा करते हैं। उसकी पूजा करने के बाद हमारा जो फोकस होता है वो उनको वर्दी पहनाई जाती है, स्वरूपों को रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को ग्राउंड में लेकर जाकर उनको युद्ध का सीन दिखाया जाता है। थोड़े बहुते डायलॉग बुलवाए जाते हैं, बोलते हैं वो, जैसे भी लीला में होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक हमारे पास एक नकली का घोड़ा है, उसके नीचे पहिए लगे हुए हैं। तो जो प्लेस हमें बताते हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने बताया, फोर फादर्स ने, उस प्लेस पर उस घोड़े के ऊपर लक्ष्मण जी का स्वरूप बिठा दिया जाता है और उनके ब्रह्मास्त्र लगाने की कोशिश की जाती है। तो और ये सब युद्ध वहाँ पर दूर एक चेयर पर ऊंचे स्थान पर रामचंद्र जी देख रहे हैं। और जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आती है तो विद इन अ फ्रैक्शन रामचंद्र भी गिर जाते हैं। तो ये मूर्छा 5:30 बजे से लेकर तकरीबन 8, 9, 10 घंटे, 12, 13 जब परमात्मा की आज्ञा हो तब खुलती है। कि आप भी देखोगे, दुनिया भी देखती है कि वो आपको उसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण ही नजर आएंगे। उनका इतना मतलब जो वो रूप होता है ना, वो सारा बदल जाता है। इसी से ही आस्था बनी है ये, कि उनका जो रूप आपको अलग नजर आएगा। आप देखोगे, आप यहीं पे हो ना, आप देखोगे कि उनका रूप आपको अलग नजर आएगा। और जब वो पड़े होंगे ना, लक्ष्मण मूर्छा आने के बाद दोनों पात्र मंदिर में पड़े होंगे ना, तो भी आपको अलग दिखेगा, उनमें से डिफरेंट ही दिखेगा कि ये वो नहीं है जो हमने सुबह देखे हैं। तो ये सारा जो इतना ये सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये सारा दशहरा ग्राउंड में होता है। वहाँ फिर हम लेकर उनको भगवान राम के स्वरूप को, लक्ष्मण जी को लेके आ जाते हैं मंदिर में। तो मंदिर में फिर कीर्तन वगैरह जो पार्टी करी हुई वो चलती है। इस पर कोई लिमिट नहीं है, 12 बजे खुलनी है, हमें भी कोई पता नहीं होता।
भगवान राम को कब होश आना है, लक्ष्मण को कब आनी है। एक भी बच सकता है, दो भी बच जाते हैं, ढाई भी बच सकते हैं। तो उस समय हौली हौली पहले शरीर उनका थोड़ा ग्राउंड से लेकर आते हैं तो थोड़ा ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, क्यों दौड़ते हैं, उसका वो हीट में होते हैं थोड़ा उनका टेम्परेचर। फिर हौली हौली 10, 10:30, 11 फिर बिल्कुल एन नॉर्मल एन ठंडे हो जाते हैं, पैर भी ठंडे हो जाते हैं, शरीर सब ठंडा हो जाता है। फिर उसकी ये हमारी फिर कोशिश होती है अभी इनको जल्दी से जल्दी फिर नॉर्मल उसी पोजीशन में लेके आएँ। हम फिर तेल मालिश करते हैं उनकी तलियों की, दबाते हैं, उनको पासे देते हैं, उल्टा करते हैं, सीधा करते हैं, जान कि उनका जो ब्लड है ना वो सर्कल में आए तो उनको जल्दी से जल्दी होश आए। ऐसे फीलिंग नहीं आती कि मैं बेहोश हो रहा हूँ। जब मूर्छा आनी होती है ना तो एकदम से आ जाती है। हम जब बहुत जैसे पेड़ में होते हैं ना, दशहरा ग्राउंड में होते हैं तो नॉर्मल ही चलते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, सिर दुखने लगता है। उसमें बाद में जब लीला शुरू हो जाती है, तीर वगैरह चलाते हैं तो उसके बाद एकदम से ही बेहोश हो जाते हैं। जो लक्ष्मण मूर्छा जिस दिन लगती है उस दिन कई लोग जो विश्वास नहीं करते वो परीक्षा लेने भी आते हैं उस दिन। तो कोई सुई चुबा देता है तो कोई कुछ ऐसी नुकीली चीज़ मारता है जो राम लक्ष्मण में उनके पैरों की तरफ, कि उनको कई बार मैंने भी देखा है कि खून निकल आया होता है, लेकिन उनको मूर्छा नहीं खुलती। डॉक्टर ये चीज़ शायद अगर मेडिकल साइंस से कोरिलेट करें तो थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण की रामलीला, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो बिल्कुल असली आती है। राम जी और लक्ष्मण जी जो मूर्छित होते हैं वो पूरी तरह रियलिस्टिक होते हैं। और मैंने राम जी का रोल प्ले किया है, सीता जी का रोल प्ले किया है, लेकिन उस समय स्कूल के टाइम्स में थोड़े छोटे थे तो इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब भी मैंने बहुत क्लोज से ऑब्जर्व किया इस चीज़ को, और एज अ डॉक्टर मैं कई बार गया हूँ, जाता हूँ मंदिर में जब मूर्छा के बाद आफ्टर डैडी, तो हम लोग जाकर देखते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी को मैंने ऑब्जर्व किया है फ्रॉम वेरी क्लोजली। आई ऑब्जर्व एज अ डॉक्टर, नॉट एज अ कि फॉलोअर्स ऑफ श्री राम जी और लक्ष्मण जी। मैंने ऑब्जर्व किया है कि उस मूर्छा को, और वो मूर्छा पूरी तरह से असली, जब वो मूर्छित होते हैं तो पूरी तरह से उन्हें कुछ बेहोशी के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, क्योंकि अगर हम कोई भी मेडिसिन देते हैं एज अ डॉक्टर, मैं बताऊँ एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें वाइटल्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। तो मैंने इस चीज़ को देखा तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो इस चीज़ को मैं मेडिकल साइंस के हिसाब से नहीं, बट एज अ फॉलोअर मैं इस चीज़ को एक मिरेकल मानता हूँ, और ये मानता हूँ कि शायद महत्वपूर्ण के लिए ये बहुत बड़ी एक देन है। और हमारे यूथ और हमारे जो पुरुष बुजुर्ग हैं सदियों से इस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी हमारे लिए चीज़ है जिससे हम लोग बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और एक यंग जनरेशन के लिए ये जो है, ये इसमें एक बहुत ही अच्छा, कोई सुनी सुनाई बात नहीं होती, सो दे यूज टू फील इट, और दैट्स वाई वी फॉलो इट। तो यहाँ की महत्वपूर्ण की रामलीला की जो मूर्छा है वो बहुत ही फेमस है। और इवन कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फ्रॉम अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, दे यूज टू कम महत्वपूर्ण, और वो मूर्छा को देखने के लिए। और शाम को जो मंदिर में लक्ष्मण और राम जी की पूजा की जाती है मूर्छा को खोलने के लिए, तो उसको देखने के अदर स्टेट से बहुत लोग आते हैं। देखिए, इसको तीनों रूपों में आप मान सकते हैं कि हम उसको आस्था भी मानते हैं, विश्वास भी मानते हैं, उसकी वैज्ञानिकता भी है। और जहाँ तक जो आस्था के हमारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर हमें बहुत बड़े प्रश्न नहीं उठाने चाहिए जो आस्था के हमारे विषय हैं। इसी तरह से लक्ष्मण मूर्छा आना, जब उसके डॉक्टर जो हैं उसको देख करके उसके नाड़ी परीक्षण करते हैं कि वाकई उसको मूर्छा आ गई है, 8 घंटे बाद उसकी मूर्छा समाप्त होती है, ये एक डॉक्टर द्वारा घोषित किया जाता है। तो ये हमारे ख्याल से इससे बड़ा वैज्ञानिक कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि आस्था के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण की जो ये परंपरा है, ये एक पूरे भारत नहीं विश्व में बड़ी बेजोर परंपरा है कि हम एक रामलीला हमारी नाटक नहीं है, नाट्य प्रस्तुति नहीं है, वो एक लीला है। और समाज जो है उससे बड़ा जो अनन्य संबंध उससे जुड़ता है, और वो पूरे भारत को एक करती है। लक्ष्मण मूर्छा की अलौकिक लीला के बाद यहाँ मेघनाद वध की लीला होती है। लक्ष्मण हनुमान के साथ मेघनाद से युद्ध करने जाते हैं, और घमासान युद्ध के बाद
मेघनाद का वध कर देते हैं। 1984 में प्रॉपर मैंने जो रोल किया मेघनाद का, तो उसके बाद आज तक करता हूँ। तो इसलिए जब स्टेज पे मेरी बारी आती है तो मेरे को बोलते हैं भाई बेटा जल्दी 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 कहाँ, वर्दी पहनी होती है, पब्लिक देख रही होती है। फिर कशिश से बात करते हैं। कशिश से कैसे, मैं एक डायलॉग बोलूँगा। उधर से लक्ष्मण आते हैं, कहाँ है वो न्यायी मेघनाद, कहाँ है? तो मेघनाद क्या कहता है, कर लेंगे अगर छोकरे दुनिया के हर एक काम को, दुनिया में कौन जाने रावण के बेटे इंद्रजीत के नाम को। जय शंकर। वनवासी छोकरों, मेरी आवाज सुन रहे हो, मंच पे आओ। जय शंकर। रामलीला मैदान के चारों तरफ सजी हुई भिन्न भिन्न तरह की अलग अलग दुकानें, हजारों लोगों की भीड़, खचाखच भरा हुआ रामलीला मैदान, रावण और कुंभकर्ण के विशाल पुतले। दशहरे के दिन महतपुर की रामलीला की शोभा देखते ही बनती है। यहाँ दूर दूर से लोग मेले का हिस्सा बनने आते हैं। इस दिन रावण के किरदार का एक अलग ही महत्व है। मेरी ज़िंदगी में तो रामलीला बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि मेरी जो पहचान बनी वो इसी रामलीला से बनी। जब मेरे को रावण का रोल मिल गया, अब शहर का एक एक बच्चा, जब मैं किसी गली मोहल्ले से गुजरता हूँ तो बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ आ गया रावण आ गया। उससे मेरी आज बड़ों के बीच तो क्या, बच्चों के बीच भी मेरी पहचान है। जब मैं बच्चों के बीच में जाता हूँ तो बच्चे कहते हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3 साल, 4-4 साल के जो बच्चे हैं वो भी देखते हैं तो कहते हैं रावण आ गया। इनका जो हमारे रावण बनता है, जो मेघनाद बनता है, इनका रोल बड़ा बढ़िया है। जो रोल करते हैं, इसको 25-25 साल हो गए, वही कर रहे हैं, वही बंदे कर रहे हैं। पर ऐसा है कि जब करैक्टर करते हैं और एक सिविल इंसान है, जैसे बिल्कुल हम दुनिया में जीते हैं, वो कुछ अलग चीज़ होती है। जब ये दिन आते हैं ना, दशहरे के दिन आते हैं, हमें रोल करना होता है, तो जब हम उनकी यूनिफॉर्म डालते हैं, वर्दी डालते हैं, तो हमारे में मन में एक अलग विचार शुरू हो जाता है ना। आप देखोगे जब इस चीज़ को हमारे सामने, हम आपके सामने आएंगे तैयार होके, हमारा बोलने का ढंग, हमारा बात करने का, चलने का एक नेगेटिव, जैसे ना मान लीजिए कुंभकर्ण की असलियत रूह उनकी हमारे अंदर आगे बस चुकी है ना, वैसे हो जाता है कैरेक्टर के बारे में। बाकी काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, थोड़ा सा अभी मान लीजिए कि रिहर्सल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 25 साल कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा टाइम होता है करने के लिए। तो बाकी ये कि करते हैं, रोल करते हैं, बहुत बढ़िया महसूस होता है मन में। क्या मैंने सीता को उठाकर कोई भूल तो नहीं की? ये लेना है ना? नहीं, नहीं। किन लोगों ने मेरी बहन सुरूपनगर की ना कर दी, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता था? तुम्हारे पैरों में हो गए।
दिन भर के मेले और लीलाओं के बाद संध्या के समय रावण और कुंभकर्ण के पुतले को जलाने के साथ रामलीला का समापन होता है। इस दौरान रामलीला ग्राउंड में मनमोहक आतिशबाजी प्रदर्शित की जाती है। जगमगा रहे आसमान को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनके दिलो दिमाग पर रह जाती है राम नाम की अद्भुत छवि।